हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं IBPS PO का लाइव मॉक टेस्ट। ये अल्टीमेट लाइव मॉक टेस्ट 10वां रहने वाला है। कल ये ख़त्म हो जाएगा। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया बेसिकली। तो चलो कोई बात नहीं, बट आप लोगों ने लगा लिया है तो प्लीज़ अपना स्कोर शेयर कर देना। ठीक है, फ़िलहाल अभी मैं लगाता हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है, क्या कुछ स्कोर आएगा। ओके, ही यू एंड आई आर द ओनली वन they here for the extra classes. All the other students left early because they didn't know about the class. He, you and I. ये अरेंजमेंट गलत है। 2 3 1 नहीं, ये गलत है अरेंजमेंट इसकी। Academics must be radiant examples of a field where diverse opinions underwrites। इसमें कुछ लग रहा है वेयर एज या फिर ओपिनियन अंडर राइट, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है इधर। रोबस्ट क्रिटिकल कन्वर्सेशन। China built its own personal station after it was excluded from the International Space Station, largely due to US objections over the Chinese space programs. Space programs intimate ties to the People's Liberation Army. China built its own personal station after it was excluded from the International Space Station, largely due to US objection over the space program. De-stressing dreams and flashbacks are well known। ये तो ठीक है, यहाँ पे well known आर भी ठीक है। well known symptoms of post traumatic stress disorder। a mentally health a mental health होना चाहिए ना, a mental health condition, mentally health थोड़ी, तो mental health condition आएगा। incorrect, one of the word is incorrectly spelled। repetition ठीक है। resistance टी ए आता है ना, TANC। स्टेंजा वुमन, रेजिस्टेंस की स्पेलिंग गलत है इधर। एडवोकेट स्पेसिफाई, यहाँ पे एप्लीकेबल डबल एल गलत है, ये एप्लीकेबल डबल एल नहीं आएगा। मैजिशियन आर्टफुली, ये गलत हो गया, डबल एल आएगा। ट्रांसफॉर्म्ड गेस्चर, कटिंग इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत है, बिजनेसेस BUSI। इंटेंसिफाई स्टैबोटेज, बैक चैनल तो कि इसको मार्क कर लेते हैं, बाद में करेंगे। कितने क्वेश्चन है? 17 तक है ये। while it is difficult to find fault within the actual number by the survey। A और R है क्या? A और R है वैसे तो, आगे देख लेते हैं एक बार। A peace process is non-existent। The politics of the party did not pave the way for the development सी के बाद डेवलपमेंट एक्चुअल नंबर। प्लीज़ वॉश योर हैंड बिफोर हैविंग फूड। ए और आर एकदम सही है, ए और आर बस सही हो जाएगा इसका तो, सिंपल से सीधा सा। आई स्ट्रांगली कॉन्कर, ए के साथ है ई। प्रोफ्यूज इन हर थैंक्स, नहीं बन रहा। CD, the old woman was
with नहीं, ये भी नहीं बनेगा. He expressed himself profuse in the bank. कुछ भी नहीं बन रहा इसका तो. ओके, आगे देखते हैं एक बार क्या है. ओके, फिर ये है तो पहले हम क्लोज टेस्ट ही कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. Quinine was the first chemical compound that was successful against any infectious disease when it was brought to Europe in the 17th century. Quinine was hailed as a miracle drug against malaria. Until then, malaria was widespread in Europe and the tropical region. या फिर ओवर द आना चाहिए ना. इन यूरोप एंड ट्रॉपिकल रीजन. The disease was highly feared because it had no known cure at the time. The illness usually began with flu-like symptoms and progressed to nausea and high fever, sometimes causing to death, resulting to death. With no effective remedy at hand, doctor could only dash the symptoms, could only manage, organize, alleviate, suggest the symptom, alleviate the symptoms. Back then, people did not know that it was caused by a parasite transmitted through mosquito. नहीं, transmitted आएगा, transmitted through mosquito bite. But they found a link between the disease and stagnant water in marsh, and so called its marsh fever. The indigenous people of Peru used the bark of the chinona tree to control malaria. The Jesuit studied the dash of the chemical. The dash of the medicine. The effect of the medicine, and introduced the treatment to Europe during the 1640. ये कर लेते हैं, बट यहाँ से स्टार्ट होगा, दिस सेक्टर से भी स्टार्ट नहीं होगा. The agriculture and allied activities sector was the only bright spot in the fiscal first quarter. On the services side, sector such as aviation and hospitality fared badly, with the trade, hotel, transport and communication sector declining by 47%. A good monsoon coupled with healthy sowing of the kharif crop suggests that it may well continue to grow at a relatively healthy pace. On the service side, यहाँ डी से भी स्टार्ट नहीं होगा, सो आई थिंक ये सी से तो स्टार्ट होगा. स्टार्टिंग हमें पता चल गई सी, ठीक है. बाकी चार भी करने, फर्स्ट तो सी होगा ही होगा, ठीक है. बट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोलैप्स्ड 9 इतना परसेंट, वाइल द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फेल बाय द स्टैगरिंग इतना परसेंट. दिस सेक्टर विच वॉज excluded from the lockdown restriction grew by 3.4% on the back of healthy rabi harvest. ई के बाद ये आएगा, यहाँ पे ई पहले फिर ए. एक तो ये पेड़ बनेगा इसका, फिर क्या है ये दिस, एक सेकंड. This sector which was excluded from the lockdown, कौन सा सेक्टर की बात कर रहा है?
इसी सेक्टर की बात कर रहा है आई थिंक ये, है ना। सी के बाद बी, ऑन द सर्विस साइड डी, फिर ई और ए, ये होना चाहिए। इसका सेकंड क्या बनेगा हमारा बी, थर्ड आ गया डी, ठीक है, फोर्थ क्या बनेगा ई, और फिफ्थ बच गया ए, खत्म। अभी देखते हैं ये, इसमें क्या, वाई डज द यूजीसी टेक द डिसीजन ऑफ इंक्रीजिंग द टीचिंग आवर्स ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर, which of the following reason for the unfortunate situation of the Indian universities as mentioned? Unfortunate reason for the unfortunate situation, यहाँ पे हमें ट्रू बताना है ये। apart from direct teaching, university teachers spend considerable time in on the university grant commission directed to college and university lecture to spend a minimum में, ये कहाँ पे है, teaching is indirect teaching is a product of budgetary cutbacks rather than pedagogic wisdom. It may seem odd at first blush that teachers should protest about teaching a mere 22 hours. However, if one considers the amount of time academic required to prepare for lecture of good quality as well as the time they need to spend doing research, it is clear that most conscientious teachers work more than 40 hours a week in the university system around the world. Lecture rarely spend more than 12 to 15 hours in directing teaching activity a week. There's not enough money. I think मुझे तो ये सेकंड लग रहा है। आगे देख लेते हैं। The average college lecturer in India does not have any office space. If computers are available, internet connectivity is unlikely. Libraries are poorly stocked. Now the UGC say university must implement a complete freeze on all permanent requirement, abolish all posts which have been vacant more than a year, and cut staff strength by 10%. And it is in order to ensure that these cutbacks do not affect the quantum of teaching that existing lecturers are being asked to work longer. Obviously, the quality of teaching and academic work in general will decline. While it is true that in some college teachers do not take their classes regularly, the UGC and the institution concerned must find a proper way to hold them accountable. An absentee teacher will continue to pay even if the number of hours he is required to teach goes up. चलो ये तो ठीक है। Which of the following reason unfortunate situation mention the poor quality of teacher? Politics की तो बात ही नहीं है। Heavy burden of teacher teaching hour, not getting enough financial assistance. आगे पढ़ना पड़ेगा आई थिंक। ये रहा UGC wants lecture to spend minimum, ये तो सही है। सेकेंड वाला तो इसमें एकदम सही आएगा। मोस्ट कॉलेज डू नॉट कैरी आउट रिसर्च वर्थ द नेम, हायर एजुकेशन सिस्टम इज अनसाउंडेड। सेकेंड भी पढ़ देते हैं। ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर ऑफ द अनसाउंड स्टेट, ये रहा दैट द हायर एजुकेशन सिस्टम इन टुडे, तो सारे के सारे आएंगे इसमें। तो apart from direct
Teaching university teachers spend considerable time on administrative activities such as admission, supervising examination. पढ़ ही लेते हैं यार एक बार thanks to year of sustained financial neglect, most Indian universities and colleges do not research worth the name. ये तो मैंने पढ़ा था एक में, ये रहा इसी में है, ठीक है. Even as the number of students entering college has increased dramatically, public investment in higher education has actually declined in relative terms. Between 85-97, when public expenditure on higher education as percentage of outlay on all level of education grew by more than 60% in Malaysia and 20% in Thailand, India showed a decline of more than 10% throughout the number of teachers in higher education per million population grew by 10% in the same period. In India, it fell by 1%. Instead of transferring the burden of government dash onto the backs of the teacher, the UGC should insist that the need of the country university system be adequately catered to. Unfortunate situation. The quality of poor teacher, political heavy burden, not getting enough financial assistance. Apart from direct teaching, universities spend considerable time on supervising examination and आंसर पेपर. ये तो था ही नहीं इसमें, आंसर पेपर का तो कुछ जिक्र ही नहीं है. कैरिंग आउट रिसर्च इन द एरिया ऑफ देयर इंटरेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. स्पेंड मिनिमम, पहला ही सही है, यही था जो कि 22 घंटे बोला था, इसमें 40 दे रखा है इन लोगों ने. सिमिलर मीनिंग ऑफ द सस्टेन. Thanks to year of sustained financial neglect. Opposite meaning of wisdom. Wisdom cut back rather than the pedagogic wisdom. Intelligence, mind, intellect. Stupidity आ जाएगा इसका. Instead of transferring the burden of government dash onto the back of the teacher. Instead of transferring the burden of government passion, government insight onto the back of the teacher. सबमिट करते हैं, 1 मिनट. ओके, यहाँ पर इसको करेंगे अभी हम मार्क. आगे चलते हैं. देखो इसका है ना, अभी अर्थमेटिक छोटे लग रहे हैं, मतलब क्वेश्चन छोटे छोटे लग रहे हैं, इजी जल्दी होने के चांस है, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे. 9 × 1, तो 9 ही आएगा प्लस में 1/2 प्लस 1/3, तो ये आएगा 5/6 इंटू में 132. 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 110 आ गया ये, तो 119 हो जाएगा. 119 हो गया, 50 150 यहाँ पे आएगा, तो 269 आ गया, ख़त्म. 700 डिवाइड बाय 14, 5 50 आ गया, 50 यहाँ से, और ये 26 आएगा. 6 × 35, 6 पंजे 30, 3 5 6 × 18, 21 ही आ जाएगा. 5 3 8 286, 135 माइनस करेंगे 151, ख़त्म. यहाँ पर कितना है 93 इंटू में 20, 0 3 दूनी 6, 9 दूनी 18.
और यहाँ पे 4 चौक 16 ही हो जाएगा 0643। और 18 का होता है हमारा 324। 324 को साइड में रखते हैं, 85 17 5 आ जाएगा, ये बन गया। फिर 121 और यहाँ से 34 का कितना होता है भाई? 1225 है 1196। ठीक है, तो यहाँ पे 0 12 4 और 1 5 हो जाएगा, 1520 ही आ गया। ये कितना बनेगा? 5 1 6 8 सॉरी 2066 नहीं है क्या? 2066 तो है ही नहीं यार। 93 इंटू में 20 0 3 दूनी 6 9 दूनी 18, यही बनेगा इसका तो। फिर 40 का 4 चौक 16 064 1 2 और 1 3 आ गया। 18 का 324 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 5 में से 3 आ गया, फिर 1 यहाँ पे 3 आ गया। 85 17 5 ऐड करना पड़ेगा, 31 41 बन जाएगा ये। फिर 121 में प्लस कर दो, 2 6 2 3। फिर यहाँ पे 34 का दोबारा निकाल, 4 चौक 16 का 6 1 4 3 12 5 24 25 का 5 1156 आएगा ये। वही गड़बड़ रहेगी, 12 में से 6 आ गया, 0 1 2 2106। स्केयर की गड़बड़ कर दी थी मैंने। 9 प्लस में 11 तो यहाँ पे 20 इक्वल्स टू में x प्लस 6 प्लस यहाँ पे कितना बनेगा 88, तो 8 आ गया, 8 और प्लस में 7 15 21 21 उधर जाके तो माइनस का 1 आएगा, ख़त्म। ये कितना आया 16 और 16 इंटू में 81 हो गया 6 8 6 48 और 49 का 9 4 8 और 4 12 हो गया। यहाँ पे 17 इंटू में 12 17 दूनी 34 का 17 एकम 17 200 4 0 0 1500 ये हो गया। फिर यहाँ पे 16 थी 48 48 जाएगा नीचे, 16 इंटू में 4 कर देते हैं सीधा सा, लेकिन 16 चौक 64 बनेगा ना यार, ये तो 750 ये हो गया 2। फिर 2 पे जाएगा 3 3 इधर आ गया, फिर 7 दूनी 14 5 इधर, ये बन गया। फिर 16 दूनी 32 5 16 चौक 64 24 या 23 के राउंड आएगा इसका आंसर, ये 23 रहा ना, ख़त्म। 9/3 तो 3 आएगा इंटू में 10 11 12 12 3 36 हो गया, और 18 18 दूनी 34 x और y है, x टेक 18 और मोर देन t, y टेक्स t का a मान लिया, x मान लिया a प्लस 18, y मान लिया 8 और मोर देन t। x प्लस वाई कितनी देर में t, x जो कि लेता है 18 प्लस t, तो डायरेक्ट 1/t हो गया, इक्वल्स टू में 1/18 प्लस t। प्लस माइनस 13 13 आ गया, फिर दोनों प्लस प्लस ये 14 आएगा, तो x इज ग्रेटर देन y हो गया। ये तो प्लस प्लस 4 और 3 फिर प्लस 6 और 6 चौक 24, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। यहाँ पे आएगा x ग्रेटर देन y, यहाँ पे कितना है माइनस, फिर प्लस 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 12 15 दूनी
30 हो गया। ये आएगा 12 और 11 ग्रेटर देन, कुछ भी नहीं बनेगा ये। यहाँ पे कितना बनेगा, 9 दूनी 18, 5 और फिर 2, और 5 दूनी नहीं, 3 इंटू 3, 5 थी 15, 2 दूनी 4, 4 थी 12, 15 और 12 आ गया, प्लस प्लस 12 एकम 12। सो x is greater than or equals to में y. They are the two positive number. This the larger number exceed the smaller number, यानी कि 5, 1 की वैल्यू 3 आ गई, 3 दूनी 6, ठीक है। रुपीज़ इतना बिकम्स इतना इंटू एयर एस आई पे, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1710 हो गई है, तो 5, हाँ, फिर 8 दूनी 16, 1 1 5, 5 इतना मिला है 9500, ये कट ही गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 17 1 आ गया, ये कितना आएगा 19, 9% आ गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय द, तो 15% कर दिया, वट अमाउंट विल रुपीज़ 10,000 बिकम इन 4 ईयर। 15 चौके 60, तो 16,000 हो जाएगा ये टोटल, ठीक है। इनको बाद में देखेंगे। एक हम DIV कर लेते हैं यहाँ से, एक तो ये है, दूसरी एक ये है हमारे पास, यहाँ पे ये खेल है पूरा का पूरा, ठीक है। सो 360 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 203 हो गया, 20/3 ध्यान रखना है बस। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट लोकेटेड फॉर क्रिकेट एंड हॉकी। सो क्रिकेट का कितना है यहाँ पे 120 है, और हॉकी का कितना है यहाँ पे, इनका डिफरेंस है 60 का। is what percent more or less than the difference between the amount of the basketball और बैडमिंटन। बास्केटबॉल का है 30, बैडमिंटन का कितना है 60, और इनका डिफरेंस है 30, 30 ही ज़्यादा है, तो 100% आ जाएगा, ख़त्म। इफ़ द अमाउंट लोकेटेड फॉर द क्रिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 स्टेट्स A B और C। क्रिकेट का कितना है यहाँ पर 120, सो 20/3 इंटू में 120 करेंगे, 4 0 4 दूनी 8, 800 हो गया, 3 3 6 7 8, 1 की वैल्यू आ गई 100। द अमाउंट रिसीव बाय द C 300 आ जाएगा, 300 यहाँ पे आ गया। वट पर मोर और लेस देन द फुटबॉल, फुटबॉल का यहाँ पे 30% है, 30 करेंगे तो 10, 200 आएगा, कितना ज़्यादा है 100। इन इफ इन कंट्री Y अमाउंट लोकेटेड फॉर क्रिकेट और बैडमिंटन is 25, amount located in for the टेनिस और बैडमिंटन, टेनिस और बैडमिंटन ये रहा हमारा 60, टेनिस है 60, 120 हो गया, इंटू में 20/3, 4 0। अब इसका 3/4 है ये, तो 100, ये 10 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 600 आ गया टोटल इसका, खत्म। इफ द 10% ऑफ द अमाउंट लोकेटेड टू बैडमिंटन एंड फुटबॉल वॉज लेटर अलोकेटेड, बैडमिंटन और फुटबॉल, बैडमिंटन 60 एंड फुटबॉल का 90 हो गया, 90 का 9 हो गया, 9 हमने किसको दे दिया, बेसबॉल को। बेसबॉल का कितना है, बेसबॉल तो है ही नहीं भाई, सो 9 हो गया बेसबॉल का, ठीक है। बेसबॉल टू द हॉकी, हॉकी का है 6320, ये रहा ख़त्म। इफ़ इन नेक्स्ट ईयर द टोटल अमाउंट लोकेटेड फॉर ऑल द स्पोर्ट्स इंक्रीज बाय द 50%, सबका 50 यानी कि 3600 हो गया। देन फाइंड द टोटल अमाउंट बास्केटबॉल एंड बास्केटबॉल का है कितना 30, प्लस में टेनिस का ये रहा 60, तो 90 हो गया। 2400 बटे 2400 नहीं 360, 360 10, 900 हो जाएगा सीधा सा, 900 होना चाहिए ना। जो देखते हैं 90 ये है, और 20/3 करना, 300, 3 दूनी 600 हो गया, 600 का तो वही 900 ही बनेगा यार फिर। द नेक्स्ट ईयर टोटल अमाउंट created for all the and distributed all the remains same. The amount located basketball
बास्केटबॉल है 30, टेनिस हमारा ये हो गया 90 हो गया। सो 90 हमारा ये था 20/3, 3 0 3 दूनी 6, 50% तो 900 बनेगा भाई, ख़त्म है ये भी। परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स जो कि है ये परसेंटेज ऑफ चाइल्ड, मेल और फिर फीमेल। PQRS, शुक्र है 4 ही है, ज़्यादा नहीं है, कर लेते हैं जल्दी से। तो एक हो जाएगा टोटल, फिर हो जाएगा मेल, फीमेल, इधर आ जाएगा चाइल्ड। ठीक है, टोटल यहाँ पे 1800 है, 18। और यहाँ पे फर्स्ट वाला ये कौन है भाई, फीमेल है क्या, नहीं चाइल्ड है ये चाइल्ड है, फीमेल है ये। फीमेल कितनी है, 18 दूनी 36। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना है चाइल्ड, 18 चौक 72, ये भी 72 आएगा, ख़त्म। ये 2800 था। यहाँ पे फीमेल 28 इंटू में 400, 8 चौक 32 का 2 3, और 4 दूनी 8, 9 10 11, 1120 ये फीमेल हो गया। चाइल्ड कितना है 25%, 25 यानी 1/4 करेंगे, 7 चौक 28, 700 हो गया। यहाँ पे 20, 60, 35 बच गया, 28 इंटू 35 करना है, 8 पंजे 40 का, 0 4 5 दूनी 10 14, 8 3 24, 8 3 3 दूनी 6, 980 हो गया। एक सेकेंड, ही क्या कर दिया मैंने, 980 तो ये आएगा, कंफ्यूज कर दिया ना, चाइल्ड तो ये आएगा 700 हमारा। ठीक है, अगला है 2400, ये है। फिर यहाँ पे ये है फीमेल 24 चौक 96। ठीक है, 15 24 15 करेंगे, 15 चौके 60, 6 30 36, 360 हो गया। 40 50 तो 45 करना है अभी, 5 चौके 20, 0 2, 5 दूनी 10 12, 4 चौक 16, और 4 दूनी 8 हो गया 2, 1080। यहाँ पे 3000 ये है, जिसमें से ये है फीमेल जो कि कितने में 750। फिर 15% है यहाँ पर चाइल्ड, 15 3 45, और 20 20 40 हो गया, 6 6 3 18 ये हो गए, ख़त्म। द नंबर ऑफ चाइल्ड आर में है ये, वट परसेंट ऑफ द मेल इन पी, 360 मेल इन पी है 720, 1/2 50%, ख़त्म। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड पी, फीमेल जो कि पी है 360, एंड द मेल इन एस 36 180, तो 102 1:5, ख़त्म। डिफरेंस बिटवीन द फीमेल विजिटेड क्यू और एस, फीमेल जो कि क्यू और एस की बात कर रहा है 250, तो ये आ गया 120 आएगा, 0 370, ये भी ख़त्म। आउट ऑफ द नंबर ऑफ चाइल्ड विजिटेड पार्क पी, द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स 720 था ये, 5 3 8, 9 0 आ गया। और बॉय टू गर्ल कितना बनेगा, 9 3 27, 9 पंजे 35, अरे 9 पंजे 45 होता है, क्या बोल रहा हूँ। द बॉयज़ बताना है 270, ख़त्म। टोटल नंबर ऑफ द विजिटर टी, अनदर सिटी सेम एज द एवरेज नंबर ऑफ ऑल, सभी का एवरेज निकालना पड़ेगा। सो 0 0 8 दूनी 16 17 18 19 20, 2 आ गया, 3 3 6 7 8 10, तो एवरेज निकालेंगे यहाँ पे 4 से, हम 4 करेंगे ना तो 2500 आएगा इसका एवरेज। तो यह कहें द चाइल्ड टी इज़ 50% दैट ऑफ द पी, पी का कितना है, तो ये 360 ही हो गया। एंड द फीमेल विजिटेड टी इज़ 800, 0 6 11, यहाँ से 2500 में से करेंगे 0 4 3 1, 1340 आ जाएगा मेल। ठीक है, यहाँ से देखते हैं द रेशियो द टाइम टेकन बाय बोट ए एंड बोट बी ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस, ए और बी का टाइम गिवन है 2:1 अपस्ट्रीम का। ठीक है, यू ए माइनस बी, यू बी माइनस बी।
ठीक है. The ratio of the time taken by boat the speed of a stream is what percentage of the so UA plus V UB प्लस V A और B का ये 3 और 2. सो अगर मैं इनको माइनस करूँ तो यहाँ से क्या आएगा UA दोनों को ऐड कर देते हैं ना सीधा सा UA प्लस UB इक्वल्स टू में ये तो आ गया 3 ये माइनस करना पड़ेगा UA माइनस B इक्वल्स टू आ गया 1. लेकिन छोड़ो यार इसको कंफ्यूज कर रहा है. 2 है जो कि मिल्क और वाटर है 3:2 मिल्क वाटर 5:3 ओके 3/5 ही हो गया 5/8 ही हो गया नहीं में बिना है 3 मिल्क का रेशियो 3/7 ही हो गया. सो 3/5 माइनस 3/7 7 पंजे 35 यहाँ पे 7 21 आ गया 5 आ गया 5 15 तो इधर कितना आएगा 5 और 1 6/35 ही आ गया 5/8 3/7 8 और 7 56 हो गया 8 8 24 और 7 आ गया 7 पंजे 35 यहाँ पे कितना बनेगा 11/56 7 पंजे 7 8 ठीक है यहाँ पे हो गया 55 और इधर कितना 8 6 48 यही था ना. फाइंड द रेशियो ऑफ द दीज आर 3/5 और 3 8 आएगा यार इधर शिट ये 8 आना था गलत कर दिया मैंने ये 3/8 माइनस 3/7 56 8 और 7 56 तो ये आ गया ठीक है तो 7 आएगा 7 21 8 24 तो यहाँ पे आएगा 3/56 11/3 आएगा इसका रेशियो. सेट ऑफ 3 नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 इज फर्स्ट हो गया 14 लास्ट 2 इज 9 दूनी 18 तो बीच में बच गया वो कितना आएगा 4 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट A प्लस B प्लस C यहाँ पे कितना आएगा A प्लस C ये कितना आ गया 8 दूनी 16 तो इनको हम ऐड करेंगे 30 40 48 हो गया डिवाइड बाय 2 24 आ गया एवरेज ऑफ नंबर 8 या 24. मदर प्रेजेंट एज ऑफ द मदर इज 6 टाइम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A ठीक है. सम ऑफ द एज ऑफ A मदर प्लस फादर आफ्टर 5 ईयर है तो ये 70 हो जाएगा. A's father is 10 year elder than A mother. Father is elder than the mother तो F माइनस M इक्वल्स टू 10 हो गया. ये दोनों को हम ऐड करेंगे 2F इक्वल्स टू 80 F की वैल्यू आ गई 40 M की वैल्यू आ गई 30 M आ गया 6 5 आ गया तो A की वैल्यू आ गई 5 खत्म. यहाँ पे आई थिंक अब और क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास अभी बचा नहीं है. अब अंकित ख़त्म हो गया टाइम ही ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. ये तो कुछ बड़ी लग रही है ज़्यादा 8 बोट ठीक है ओनली 1% बोट लेकिन 2 नंबर की थी ये. सम ड्रामा आर्ट है ओनली फ्यू आर्ट इज फैंटेसी पोएट्री फैंटेसी ठीक है. फैंटेसी पोएट्री फैंटेसी आर नॉट आर्ट और सम फैंटेसी आर इज आर्ट तो 1 और 3 आएगा. ओनली फ्यू पिज़्ज़ा पैनकेक्स सम पैनकेक्स नॉट कोक सम कोक पिज़्ज़ा ठीक है. इस तरीके से बनेगा ये.
सम कोक आर नॉट पैनकेक, सम कोक इज नॉट द, नहीं पता हमें। और सम पैनकेक आर पिज़्ज़ा, पैनकेक पिज़्ज़ा ठीक है, सम पिज़्ज़ा इज कोक, ये भी ठीक है, तो सेकंड और थर्ड। 8 person है इन सिटिंग इन ए रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ H, H is sitting at extreme end, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, H इधर आ गया, A, H इधर आ गया, A आ गया हमारा। 3 person A और B, 1 2 3, 1 2 3, ये आएगा A और B, B फेसिंग नॉर्थ, E और C आर इमीडिएट नेबर ऑफ A, ठीक है, बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू A, अपोजिट टू A। फिर आगे क्या है, C डज नॉट एडजेसेंट टू द H, सो C इधर आएगा, E इधर आएगा, C और फिर E इधर आ गया। आगे देखते हैं ओनली 2 person D और G, सो D और G इधर ही बनेगा। बचा कौन सा, A B C D E F रह गया ना, F इधर आ जाएगा, F इधर, D और G हमारा ये बच गया। G हुज इट एक्सट्रीम एंड, सो G इधर आ गया, D इधर आ गया, G इधर आ गया, D, H और A फेस सेम डायरेक्शन, ठीक है। आगे क्या है, पीपल सिटिंग एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, immediate neighbor of B face opposite to each other, D is set to the immediate left of F, इसमें तो ठीक है, इसमें भी ठीक है। F who faces north, ये खत्म। D और F facing opposite direction, हो गया, बन गया हमारा। फिर क्या है, which of the following are the immediate neighbor of the sitting extreme end, तो E और B आएगा। which of the following is related to F in the same way C is related to B, C is related to B, दो का गैप है बीच में, और F दो का गैप, फिर A आएगा इधर, ओड वन आउट, H E एक साथ, A और C एक साथ है, B और F A भी एक साथ है, B और G भी एक साथ, D और कुछ और ही चीज़ें। E इमीडिएट राइट, A के इमीडिएट राइट, B के इमीडिएट राइट जो है G है, लेकिन यहाँ पे D के इमीडिएट राइट F, यार ये तो गड़बड़ है, H E ठीक है, A और C भी ठीक है, B और दोनों एक साथ, B और G अपोजिट, D और F एक सिंगल, एक अपोजिट, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या फॉलो करेंगे ये। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू द D, C इमीडिएट राइट, हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग साउथ, 1 2 3 4, ठीक है। और आगे क्या है, 10 पीपल, हाँ 10 पर्सन है जो कि ये है, और हैव देयर मीटिंग ऑन द डेट्स, 1 पर्सन मीटिंग 15 30 15 30 15, आई थिंक काफ़ी रहेगा ये। जनवरी अप्रैल जून सितंबर दिसंबर है ये, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आई, फिर अगस्त, ठीक है, 2 ही मंथ है जो 31 वाले। टॉम मीटिंग इन द 30 मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ 30, हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, सो इनमें से कहीं पे आएगा। Ben goes for the meeting 15th of December, immediate before Bob, more than 5 meeting Harry, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही बनेगा मार्क और हैरी, मार्क हैरी
मार्क इधर, हैरी इधर आएगा। आगे क्या है, 2% गोज टॉम एंड जॉय। जॉय हु इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ मार्क। सो यहाँ पे देखते हैं, अब मैं अगर इधर बनाता हूँ 2 छोड़ करके, जॉय और लिख ही लेते हैं, जॉय एंड मार्क एक साथ आएंगे नहीं। मोर देन 5 बोला था, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। जेरी डज नॉट गो मीटिंग ऑन द 15th ऑफ एनी मंथ। जेरी आएगा 30th को आएगा, नाइदर इज मीटिंग इन द मंथ है, सो जेरी इधर आ जाएगा। यार ये तो बना ही नहीं, फिर गलत हो गया। यहाँ पे बोला है जेरी डज नॉट गो, 15th बोला है ना, ओके जेरी इधर आ जाए, 13th पे आ जाएगा जेरी। जेरी इधर आ गया, बन गया ये तो। फिर only two meeting have been scheduled between Harry and who is meeting on the 15th of the month, and the one who is only 2 meetings have been scheduled between Harry who is on 15th and the one who is 30th of June. Harry who is meeting on 15th। यार ये तो गलत है ना, टॉम जो कि है मीटिंग शेड्यूल ऑन द 30th ऑफ द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। चलो ये हमें नहीं पता अभी। बैन गोज फॉर द मीटिंग ऑन 15th ऑफ इमीडिएट बिफोर बॉब, तो ये इधर फिक्स हो गया। अब बोला है मोर देन 5% गोज मीटिंग बिटवीन मार्क एंड हैरी। अरे हेनरी बोला है ये, शिट। ओनली 2 हेनरी जो कि 15th एंड द वन हु हैज़ 30th ऑफ जून। सो 30th ऑफ जून तो ये हो गया, 2 छोड़ करके हेनरी आएगा इधर। कंफ्यूज कर दिया था ना हैरी और हेनरी में। स्टार्क इज नॉट हैविंग हिज मीटिंग ऑन 15th ऑफ जून। स्टार्क इधर आएगा नहीं। फिर इधर एक चीज़ ये बोली थी, जॉय और टॉम में, टॉम इधर आ जाएगा। 30 क्या बोला था टॉम, 30 ऑफ द मंथ हैविंग इवन, टॉम इधर, टॉम 2 छोड़ करके जॉय इधर आ गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब जॉय और मार्क एक साथ होंगे नहीं तो ये वाला बनेगा नहीं, ये वाला ही बनेगा हमारा, सही जा रहा था ये। और फिर क्या है, स्टार्क जो कि 15th को आएगा नहीं, तो स्टार्क इधर आ गया एंड ही अटेंड द मीटिंग आफ्टर द मार्क, सही है एकदम। और फिर द फॉलोइंग मीटिंग शेड्यूल ऑन 30th ऑफ जून, स्टार क्या आएगा ये, मार्क हेनरी, मार्क आ गया, हेनरी आ गया, सैम बैन, सैम बच गया, सैम हो गया, बैन हो गया, फिर ये जेरी ही गलत है जो कि 30 को है। हाउ मेनी पर्सन हैव देयर मीटिंग शेड्यूल बिटवीन द 15th ऑफ अप्रैल एंड द हैरी, 1 2 3 4। मीटिंग जून को बताना है, जून में सैम और स्टार्क, कहाँ है सैम स्टार्क की रहा। फॉलोइंग मीटिंग इमीडिएट बिफोर एंड आफ्टर जेरी, बिफोर मार्क और हैंडी आ जाएगा। एम ग्रेटर देन एच, एम ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एस हो गया, एस के ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन, तो पहला तो है सही, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस, आई बनाना है आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस, ये भी ठीक है बोथ। यार इतने बेकार नहीं आने वाली है बिल्कुल भी, सीरियसली ऐसे नहीं आएंगे। ए ग्रेटर देन आर, ए ग्रेटर देन ए इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन तो है नहीं,
और बात करें कि इक्वल्स टू की तो ये इधर और जाएगा. 8 person is sitting on the circular table. Each person faces toward the center. ठीक है. Okay, only one person, J or R. T sit 3 places away from the C. N is second to the left of the person sit opposite to the F. As many person sit between R और T, उतना ही T और P होगा. F does not faces T. The number of the person who sit opposite to the N, immediate neighbor of J. Then the person sit opposite to the N. The JP is not the immediate. P does not sit immediate left of C. R और N next to each other. तो R और N का पता चल गया हमें. R अगर इधर है, R चलो ये ख़त्म हुआ. P और C का मैं नहीं पता. R और C does not sit. R और C एक साथ होंगे नहीं. डैश लेफ्ट. सो यहाँ पे आएगा F. R के नहीं, ये आ गया इधर तो इसके लेफ्ट में. F के F इधर है. देखो F अगर इधर आया फिर इसके अपोजिट में ये है तो उसके सेकंड टू द लेफ्ट ही होना चाहिए. तो F इधर आएगा. ठीक है. सो यहाँ से ये ख़त्म हो गया. फिर है T और C. T और C में 2 का गैप है. सो 2 का गैप यही बन सकता है फिर. T और ये स्पेस खाली है इधर. इधर T हो नहीं सकता. बन उधर भी सकता है ये. R और C और P के इमीडिएट लेफ्ट में इधर होगा नहीं. कहाँ गई पेंसिल? अरे यार. देखो R इधर है, 2 छोड़ करके इधर हो सकता है या फिर 1 छोड़ के इधर और फिर ये इधर. R 1 छोड़ करके T या फिर 2 छोड़ करके इधर T हो सकता है. J F R N. R 1 छोड़ करके इधर T फिर 1 छोड़ करके इधर P हो गया C. और C के इमीडिएट लेफ्ट P नहीं होगा तो ख़त्म. R 2 छोड़ करके इधर आएगा हमारा. T आएगा 2 छोड़ करके फिर यहाँ पे. ये तो नहीं बनेगा भाई. ये पॉसिबल नहीं है. ना ही ये बनेगा ना ही ये बनेगा क्योंकि फिर उधर हमें P भी बनाना पड़ेगा तो वो चीज़ पॉसिबल तो है नहीं. इधर आ गया F N R. इधर आ गया J. ठीक है. अब क्या करना होगा. R और C एक साथ हो नहीं सकते. ठीक है. C इधर आएगा नहीं, C इधर आएगा नहीं. R के बाद अगर मैं वो करते हैं ना, T और P को फिक्स करते हैं. T अगर इधर बना दिया या फिर 2 छोड़ करके T मैंने इधर बनाया. R T 2 छोड़ करके P. अब T और C में फिर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही. या फिर इधर मैं बना दूँ T R T फिर P. देखो R T P इधर बना दिया. अब C के इमीडिएट ये सेंटर में फेस कर रहे हैं
आर और सी एक साथ होंगे नहीं, तो सी इधर हो गया, यही बनेगा हमारा, बन गया ये पूरा, सही है। ठीक है, सी एफ हो गया, जे एन ओ रह गया, ओ इधर आ जाएगा, ख़त्म। द पर्सन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, यहाँ पे ये सेकेंड टू द राइट बोला है, सी आ जाएगा, ख़त्म। ऑड वन आउट, एन सी आर ओ एफ अपोजिट है, तो ये एन सी मिलना चाहिए जे और, एक सेकेंड ये क्या गड़बड़ हो गई यार, टी और फिर जे अपोजिट है, एन और सी अपोजिट है, आर ये भी अपोजिट है, जे और सी अपोजिट नहीं है ना, ख़त्म ही होगा। then the same way n is related to the o, c is related to f, the same way dash, the same way t is related to r, correct बताना है। t is immediate right of and f is second to the left of p, r is second to the left of j, who sit second to the right of the person opposite to the n, सेकेंड टू द राइट, एफ आएगा इधर। यहाँ पर है 8 people हैं, गो द डिफरेंट मार्क्स, डी गोट 16, द मार्क्स ऑफ ई इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ए प्लस सी, बी गोट 29 विच इज इक्वल्स टू द सम ऑफ बी, अच्छा एफ प्लस डी होगा 29 के इक्वल, डी का जो कि है 16, तो यहाँ पे माइनस करें 3, एफ आ गया हमारा 13, ये ख़त्म। यहाँ से आगे क्या है, द नंबर, यहाँ पे ये बना लेते हैं, बी इज़ ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ हो गया, और ई ग्रेटर देन ए और सी होगा। द डिफरेंस बिटवीन द बी और एच इज इक्वल्स टू द ई और डी, बी गोट मोर मार्क्स देन एच और एच एंड डी, एच ओके एच है, ई गोट मोर मार्क्स देन E got more marks than D. So ये ऐसे ही जाएगा, और B got the more marks than, ये हो गया A got 11, A आ गया हमारा 11, C का हमें पता नहीं है, E कहाँ से पता चलेगा, G got 21, G आ गया 21, G इधर आ गया, और G got 21 विच इज़ 6 मोर देन द C, C का पता चल गया 15 यानी कि E हमारा आ जाएगा 26, E का पता चल गया हमें 26, सो E आएगा सबसे पहले, नहीं सॉरी B E, फिर G आ जाएगा, G होने के बाद फिर D, फिर C, F हो गया, फिर A आ गया। अब यहाँ पर इसका काम ख़त्म, E ग्रेटर देन A और C ये भी ख़त्म हो गया, B ग्रेटर देन H और D ग्रेटर देन ये हो गया। B कितना है हमारा 29 है, H पता नहीं, E है 26, D कितना है 16, तो यहाँ पे 10 का गैप है, तो 19 आएगा, H आएगा 19, डिफरेंस बिटवीन G और F, G और F का साथ 8 आ जाएगा इधर। मार्क्स ऑफ ई और एफ का मार्क्स बताना यार, 39 आना था, ये तो टिक लिख कर ही लेता यार, मैं गलती कर दी मैंने। चलो सो मेरा जो स्कोर बना है वो बना है 57.5, बाकी आप लोग बताना क्या रहा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।